We will be starting with a new poem today, that is Wind. The poem Wind, it is a symbol. मतलब आपके पेपर में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं इन 9th, 10th, 11th and 12th that whether it is a symbolism मतलब symbol, जैसे आप symbol डालते हो for greater than है तो आप symbol डालते हो, then less than है तो आप symbol डालते हो. So that means that is a symbol used for greater than. Similarly, wind is a symbol. The wind symbolizes all the problems in our life. जो poem wind है, that symbolizes all the problems. अब ऐसा तो हो नहीं सकता है बेटा कि जिंदगी में कभी प्रॉब्लम्स ना आए. Problems would be always there. Adversities are part of our life. कभी हम बीमार पड़ जाते हैं, कभी घर पे कोई और प्रॉब्लम हो जाती है, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स हो जाती हैं. There are certain sorrows that we have to overcome. Sometimes we lose our nears and dears one. Therefore, what happens जब ऐसा कुछ भी हमारे साथ होता है, कुछ भी, like for a child, उसके लिए, आप बच्चों के लिए पढ़ाई सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है. आपका करियर बहुत इंपॉर्टेंट होता है. फॉर यू योर फ्रेंड्स माइट बी वेरी इंपॉर्टेंट. लाइक you are learning music, for you music might be very important. And sometimes we face obstacles in all these also. कभी हमारे मार्क्स हमें सपोर्ट नहीं करते हैं, कभी हमारा करियर ग्राफ वैसा नहीं जाता जैसा हम चाहते हैं. Therefore, we become weak. Life में, if you look into the graph of any great personality, if you have read the autobiography of that personality, or the biography of that personality, or the story of that personality, जैसे हमने मूवी देखी होगी MS धोनी, what we saw in that was MS धोनी एक दिन में धोनी नहीं बना था. No doubt today he is very rich, influential, but he did not become this rich or this influential in one day. 1 minute. So he did not become rich in a day. It took him years. उन्होंने क्या क्या नहीं देखा था. मतलब हमने मूवी के अंदर कितना दिखाया that he was going to his school, he was also going to the examination center, at the same time he was going for the practice. यानी कि आप खुद सोच कर देखो कितनी मेहनत उन्होंने की होगी. It's not easy. It's not easy to get into the Indian team. इंडियन टीम के अंदर आने के लिए आप, मतलब कि people can only dream, but he made that dream come true. He faced all those obstacles. पेरेंट्स सपोर्ट नहीं कर रहे थे. दे सेड कि तुम्हें जो है गवर्नमेंट में जॉब करना है. ही वॉज वर्किंग एज अ टीटी, बट उसके साथ में ही कंटिन्यूड विद हिज प्रैक्टिस. यानी कि ही डिड नॉट
think about the happiness. मुझे मूवी जाना है, मुझे जो है मतलब कि आई वॉन्ट टू एंजॉय माई सेल्फ, मुझे सोना है, नहीं, ही एफर्ट उन्होंने कम से कम पूरा अपना जो एफर्ट था वो लिया, एंड दैट इज वाई ही सक्सीडेड इन हिज लाइफ. अनदर एग्जाम्पल in our Indian history, मतलब कि Indian context only, you can see the current Prime Minister. He did not rise to the position of Prime Minister in one day. यानी कि अगर आप परेशानियों को सामना नहीं करोगे, if you become weak, if you cry, मेरे साथ ये परेशानी हो गई है, if you blame others, दूसरा है मेरे परेशानी का कारण, then you can never face the success in your life. The theme of this poem, The Wind, written by Subramanya Bharati. Remember, it is written by Subramanya Bharati in Tamil, but it was translated by A.K. Ramanujan. It was translated by A.K. Ramanujan. Subramanya Bharati is one of the versatile poets in Tamil literature, जिन्होंने आज़ादी, परेशानी, इन मतलब कि he has written poems on all. in Tamil literature में तो इनकी बहुत सारी poetries हैं, and here he is conveying this message to the readers that wind, as I said, wind is a symbol. परेशानियां will come, will destroy you, आपको बिल्कुल destroy कर देगा, तोड़ देगा आपको. It will make fun of you. लेकिन if you are steadfast, अगर आप में हिम्मत है, आप सामना कर सकते हो, you are strong from your inside, then no wind can ever break you. That wind will become your support because it will make you strong. That is the theme and the message. So if we want to face the obstacles of our life, if we want to face the adversities of our life, अगर हमें जिंदगी की परेशानियों का सामना करना है तो हमें स्ट्रॉन्ग रहना है. We need to face those realities, the harsh realities. That is the message and the theme of the poem. Now I'm sharing the explanation with NCERT, and along with that we would be also discussing the poetic devices of. The wind blows strongly and causes a lot of destructions. How can we make friends with it? The wind is a symbol, symbolism. Wind comes softly. मतलब the poet is here. The poet जो है, he is conversing with the wind. He is asking the wind to come softly. Don't break the shutters of the windows. Don't scatter the papers. Don't throw down the books on the shelf. मतलब कि wind जो है वो इतना तेज है. The wind is so, the breeze is so ferocious कि विंडो के शटर जो है वो टूट रहे हैं.
जो पेपर्स रखे हुए हैं वो फैल गए हैं, यहां तक कि जो रैक पर बुक रखा है वो भी गिर गया है. Then look what you did. यहां पर the tone of the poem is angry. वो गुस्से में है. वो पोयम वो विंड से कहता है देखो क्या किया तुमने, तुमने सब चीजें नीचे गिरा दी. You tore the pages of the books. You brought rain again. तुमने फिर से वही किया, तुमने सारे किताबें फाड़ दी, तुम्हारी वजह से बारिश भी आई. You are very clever at poking fun at weaklings. Weaklings मतलब the weak people. मतलब if we are weak, then these adversities will make us sick. हमें और बुरा बना देगी, हमें और कमजोर बना देगी और हमारा सब मजाक बनाएंगे. We would become a laughter stock for everyone. Frail, crumbling house, crumbling doors, crumbling rafters, crumbling wood, crumbling bodies, crumbling lives, crumbling hearts. तुम बहुत ही बुरे हो. तुम उन सब चीजों का मजाक करते हो जो कि कमजोर हैं. फ्रेल मतलब वीक. फ्रेल मतलब वीक. कमजोर घर, कमजोर दरवाजे. क्रम्बलिंग राफ्टर्स, राफ्टर्स मतलब बोट. कमजोर बोट्स, कमजोर लकड़ी. क्रम्बलिंग बॉडीज, इंसान जो कमजोर है, जिनकी जिंदगी कमजोर है, जिनका दिल कमजोर है, तुम उन सब का मजाक उड़ाते हो. मीन्स एडवर्सिटीज मेक देम वर्स. लाइफ की जो चैलेंजेस होते हैं वो हमें और कमजोर बना देते हैं. The wind god winnows and crushes them all. This is one of the most repeated line in the papers. The wind god, यहां पर the wind has been personified as God. कहते हैं जिस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, वीट होता है, वीट मतलब गेहूं. अगर आपने देखा हो तो गेहूं को जो है हम लोग एक छन्ने में डालकर हम उसके अंदर से जो उसके ऊपर के जो छिलके होते हैं उसको अलग करते हैं. वी विनो देम. विनो मतलब उसको, डस्ट को, उसके जो मतलब की भूसा है उसको अलग करते हैं, विनो करते हैं. उसी तरीके से विंड कमजोर और स्ट्रॉन्ग इंसान को अलग करता है. इट इज द एडवर्सिटी जो बताता कौन सा इंसान स्ट्रॉन्ग है. जो जीता वही सिकंदर. जो सिकंदर बन के आता है. और कौन वो है जो क्रश हो जाता है, कमजोर पड़ जाता है, दब जाता है. He won't do what you tell him. आप विंड को यू कैन नॉट डिक्टेट. भाई तुम ये करो, तुम वो करो, आप उसको नहीं बोल सकते हो. आपको खुद को स्ट्रॉन्ग करना है. You cannot ask the problems not to come, but you have to make yourself strong. So, come, let us build strong homes. Let us join the doors firmly. Practice to form the body, make the heart steadfast. तो हमें क्या करना है, हमें अपने घर मजबूत बनाने हैं जिससे कि जो विंड नाम की चीज है वो हमारे घरों को ना तोड़ दे. हमें अपने डोर्स को ऐसा स्ट्रॉन्ग बनाना है कि हवा से हमारे घर के दरवाजे ना टूटे. हमें अपनी बॉडी को इतना स्ट्रॉन्ग करना है कि कोई भी बाहर की चीज हमें ना वीक करे. हमें अपने दिल को मजबूत करना है. स्टेडफास्ट मतलब स्ट्रॉन्ग. Means if you have the strength to face the wind, no wind can ever break you. Do this and the wind will be friends with us. मतलब यहाँ पे फ्रेंडशिप का मतलब क्या है. अब विंड ये तो नहीं है ना हम जाके उसे बोले हाँ ओ हाय हाउ आर यू, सो आर यू हैविंग एनी अकाउंट ऑन इंस्टा और स्नैपचैट, ऐसा तो नहीं हम बोल सकते. इट मीन्स when a person
when a person is able to face the adversities of the life, जिंदगी की मुश्किलों को जो इंसान सामना कर सकता है, उनके लिए ये मुश्किलें एक दोस्त बन जाती है. The wind blows out weak fires. मतलब आप भी देखो, अपने घर में एक माचिस की तिल्ली निकालो, ठीक है, जस्ट टेक अ मैच बॉक्स, उसको जलाओ एंड पंखा है वो बुझ जाएगा, बिकॉज वहां पे ऑक्सीजन कम है एंड दैट द फायर इज वीक. आप चलाओ, बुझ जाएगा. बट वही आग, वही मतलब फायर जो है, व्हेन इट इज इन द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट में अगर एक पेड़ पर आग लगती है तो पूरा का पूरा फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय हो जाता है. यानी कि आग तो वही है ना, यहां पंखे की हवा में बुझ गया बिकॉज इट वॉज वीक. वहां स्ट्रॉन्ग था, वहां पर वो फैल गया. द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स, ही मेक स्ट्रॉन्ग फायर्स रोर एंड फ्लरिश. रोर का मतलब होता है दहाड़ना, लेकिन यहां पर इट इज नॉट रोर एंड फ्लरिश इज नॉट यूज फॉर दहाड़ना. इट इज यूज्ड फॉर द वीकनेस ऑफ फायर. अगर फायर वीक होगा तो विंड उसको बुझा देगा, फायर स्ट्रांग होगा तो वो फैलेगा. यानी कि इफ यू आर वीक यू आर गोइंग टू बी डिस्ट्रॉयड. हिज फ्रेंडशिप इज गुड, तो लेट अस मेक इट एज फ्रेंड. हम इस एडवर्सिटी नाम के विंड को अपना दोस्त बना लेते हैं और उसकी हम रोज तारीफ करते हैं. So as I said in the very beginning that this poem is a symbolism. Like आप अपने मैथ्स के अंदर लिखते हो ये, तो इसका मीनिंग होता है इक्वल टू. You write this greater than, lesser than, these are the symbols. Similarly, wind is the symbol for the adversities, the problems of life. अब जिंदगी में प्रॉब्लम्स आएंगी ही आएंगी. ऐसा नहीं हो सकता कि किसी की जिंदगी में प्रॉब्लम्स ना हो. किसी के पहले आती है, किसी के बाद में आती है, किसी के पढ़ाई में आती है, किसी की नौकरी में आती है, किसी के बचपन में आती है, किसी के बुढ़ापे में आती है, बट प्रॉब्लम्स आती है. देयर इज अ सेइंग, हर घर में एक दरवाजा होता है, यानी कि हर घर में एक प्रॉब्लम जरूर होती है. बट हाउ वी फेस दैट प्रॉब्लम, ऐसा नहीं है कि ये प्रॉब्लम्स जो है वो हमें मतलब नहीं होंगी. अगर आप सोचते हो वाओ दैट पर्सन इज सो हैप्पी, द पर्सन इज हैप्पी बट प्रॉब्लम्स नहीं है, ऐसा नहीं है. हैप्पीनेस इज समथिंग विच वी फील एंड प्रॉब्लम्स आर विच विल बी कमिंग विद अस. हर एक कदम पे प्रॉब्लम होगी, हर कदम पे. आप लोग जो हो, यू आर इन क्लास 9, 9th को पास करना प्रॉब्लम होगा. आधे बच्चे भूल जाते हैं. 10th में बोर्ड की प्रॉब्लम्स होंगी, 11th में नए सब्जेक्ट्स की प्रॉब्लम्स होंगी, 12th में एडमिशन की प्रॉब्लम्स होंगी, कॉलेज में प्रोजेक्ट्स की प्रॉब्लम होंगी, बाद में नौकरी की प्रॉब्लम होगी. नौकरी कर रहे हो तो उसमें प्रॉब्लम होगी, बिजनेस करोगे तो उसमें प्रॉब्लम होगी. तो प्रॉब्लम से हम भाग तो नहीं सकते. वी कैन नॉट रन फ्रॉम द प्रॉब्लम्स, वी नीड टू फेस देम, वी नीड टू फाइट विद देम. एंड दैट फाइट, रेडी टू फाइट जो आपकी शक्ति है, दैट इज योर स्ट्रेंथ. पीपल विल laugh at you, people will make fun of you, people will blame you, people will criticize you,
ओह, ये क्या कर सकता है? देन अगर हम उनकी बातें सुनेंगे तो हम तो कुछ नहीं कर सकते हैं. We need to build ourselves strong. I'll just share one story which I always मैं खुद के लिए inspire लेती हूँ. I'm not taking this inspiration for anyone, but personally I take this as an inspiration. Definitely this poem is also an inspiration. I have seen अमिताभ बच्चन जी सिंस हम छोटे बच्चे थे तो ही वॉज अ हीरो फॉर अस. आप लोगों के लिए जैसे रणवीर और रणबीर आर देयर, हमारे लिए अमिताभ बच्चन जी वॉज अ आइकन. ऐसी कोई मूवी नहीं होती थी जो हम ना देखते हो. कोई मूवी ऐसी नहीं होती थी उनकी मूवी, क्योंकि माय फादर वाज डेड फैन ऑफ अमिताभ बच्चन जी. तो जैसे ही अमिताभ बच्चन जी की मूवी लगेगी वो हमसे नहीं पूछते थे. उनका ऑफिस कनॉट प्लेस में था तो ही वुड गो टू, वहां पे उस वक्त में रीगल, अब तो पीवीआर नाम है, ही वुड गो टू दोस एरियाज. 1 o'clock जब उनका लंच टाइम होता था एंड ही विल ब्रिंग द टिकट्स 1 month बिफोर. वी हैव सीन हिम लाइक दिस, but unfortunate, he was, he was very, he had the attitude. He would not talk to anyone in this world. Kabhi bhi he will not be giving any interview. Then there was a time, the movie Coolie, he was just having this action. एक टेबल था बस सिंपल, छोटा सा टेबल जो हमारे ऑफिस में होते हैं, उसका कोना उनके पेट में लगा था while the fighting sequence was taking place. That was accidental. He was taken to the hospital. He was on deathbed for more than 1 month. I remember people used to pray for him. पता नहीं कितनी पूजाएं की गई थी. That was not end. वो उनकी प्रॉब्लम्स का एंड नहीं था. उसके साथ उनको जो है हमेशा के लिए बेड रेस्ट बोल दिया गया. मतलब उनकी इतनी बड़ी सर्जरी हुई एंड ही वाज ऑन हिज डेथ बेड फॉर सो मच ऑफ टाइम दैट ही कुड नॉट कम आउट. नाउ फॉर 2 years ही वाज ऑन रेस्ट. दीज आर आई थिंक 80s की बात है, मतलब 80s 85 88 ऐसा ही कुछ था, कूली वगैरह. देन डेफिनेटली फिल्म वर्ल्ड ऐसा होता है कि आज मैं नहीं तो कोई और, उनके बदले दूसरे हीरोज आने लग गए. एंड आफ्टर अ स्पैन ऑफ अराउंड 10 years, मतलब जब वो ठीक हो गए एंड उनको लगा कि वो अब दोबारा मूवी कर सकते हैं, जब वो आए सामने, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी? अब वो बूढ़े हो गए, मतलब उनका एज 10 years गैप हो गया एंड यंगस्टर्स हैड ऑलरेडी कम. अब उनको काम कौन देगा? पहले तो वो एक्शन हीरो थे, एक मूवी में अमिताभ बच्चन जी और मूवी चलती थी. अब it was the time of Govinda, it was the time of Mithunda, it was the time of youngsters. But he did not become weak. उनकी 2 मूवीज एक साथ रिलीज हुई थी, एक हम और एक आज का अर्जुन. मैंने तो सारी देखी है इसलिए मुझे पता. हम वॉज सुपर डुपर हिट, आज का अर्जुन वॉज ऑल्सो ओके. बट अब उन्होंने अपनी मूवीज में थोड़ा थोड़ा करके ही स्टार्टेड, जहां पहले वो सिंगल हीरो थे, नाउ ही बिकेम, उन्होंने वो सारी चीजों को अपनाने की कोशिश की जो यंगस्टर्स करते थे. इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर अ पर्सन टू चेंज. ही चेंज. यहां उनकी परेशानियां खत्म नहीं हुई. अब ही वॉज डेफिनेटली 10 साल घर पे रहने के बाद जब आप आ रहे हो तो यू हैव लॉस्ट सो मच ऑफ मनी, फेम. उन्होंने अपना मतलब कि कंपनी स्टार्ट किया था ABCL कॉर्पोरेशन, जिसके अंदर एक बहुत अच्छी मूवी भी बनी थी, तेरे मेरे सपने. एंड उसके बाद ही हैड इन्वेस्टेड इन वन ब्यूटी पीजेंट, मतलब वो जो मिस यूनिवर्स वाला जो कंटेस्ट हुआ था उसमें उन्होंने किया. ही लॉस्ट एवरीथिंग.
उनका घर, आई थिंक जलसा था या फिर दूसरे वाला था जो जुहू में था, दैट वाज अंडर, गिरवी रखा गया। प्रतीक्षा, वो गिरवी रखा गया, इट वाज मॉर्टगेज्ड आईसीआईसीआई बैंक में। उनको दूरदर्शन को 50 लाख का कर्जा देना था। His movies were not working so good। उन दिनों में उनकी बड़ी अजीब अजीब मूवी आई थी, अजूबा, जादूगर करके, सब फ्लॉप थी। He was under debt। सोचो, एक आदमी जो कि पहले हवा में उड़ रहा था, he was facing so many problems। उनकी तबीयत तो वैसे भी ठीक नहीं रहती थी, उनको ट्यूबरकुलोसिस हो गया था, उनके पेट में मतलब की चोट लगी थी, he has asthma, he has other problems। then सोचिए अगर उस दिन वो बैठ जाते घर पर, तो आज हम अमिताभ बच्चन जी को देख पाते? नो। ही टुक द करेज। जो इंसान पहले कभी किसी को इंटरव्यू नहीं देता था, ही एग्री टू डू द वेरी फेमस KBC 1, कौन बनेगा करोड़पति का फर्स्ट सेशन, एंड दैट चेंज द हिस्ट्री। दिस इज what we call as obstacles of life। That means अगर वो उस दिन कमजोर होते तो शायद पता नहीं क्या होता। ठीक है, उनके पास पैसा अभी भी, उनके फादर की रॉयल्टीज हैं, सब कुछ था, बट देन टुडे ही इज एन आइकन, अ यूथ आइकन, अ वर्सेटाइल एक्टर। क्योंकि आज की डेट पर ही इज अराउंड 85, 82, 83 तो है वो। ही इज वर्किंग लाइक अ यंगस्टर। He is matched to a 25 years old child। That is wind का जो उन्होंने wind में, he did not become the weak fire, he become the strong fire। That is the theme of this chap poem, Wind। I'm quickly once again doing it along with NCERT, and then I'm going to mark the poetic devices for you। Wind, यहाँ पर the poet is conversing with the wind। Wind come softly, धीरे से आओ, इतनी तेज आओगे तो बहुत नुकसान होगा। Don't break the shutters of the winds, don't scatter the papers, don't throw down the books on the shelf। क्या कर रहे हो आप? देखो आपकी वजह से खिड़कियां टूट रही हैं, पेपर्स इधर उधर मुड़ रहे हैं, बुक्स जो शेल्फ पर है वो गिर गए हैं। Then there, look what you did, you threw them all down। क्या किया आपने? You tore the pages of the books, you brought rain again। देखो क्या करा तुमने, कितना नुकसान किया, how much of destruction you have caused। You're very clever at poking at weaklings। Frail crumbling houses, crumbling doors, crumbling rafters, wood, bodies, lives, सबको, जितने भी लोग crumble मतलब ऐसे खचड़ जाना बोलते हैं ना हम लोग, क्रम्बल कर देना पेपर को, क्रश्ड। क्रश्ड मतलब वीक। Those who are weak, whether it is the boat or the person, whether it is the people, whether it is the heart, आप उनका मजाक उड़ाते। The wind god winnows and crushes them। अब यहां तक तो उसने he was angry, लेकिन अब जो नीचे यहां से हम लोग जो पढ़ रहे हैं यहां से, this is actually the message that he is giving। He is conveying the message। जो ऊपर है, that is he is speaking to the wind and he is telling about its destructive power। यहां वो उनकी जो डिस्ट्रक्टिव पावर है उसको बता रहे हैं, whereas नीचे वो हमें बता रहे हैं the wind god winnows and crushes them। winnows मतलब जैसे हम गेहूं को छानते हैं, अलग करते हैं from its, उसके जो टुकड़े ऊपर जो कवर होता है। Similarly, the wind winnows the good and the weak and the strong person। Strong को वो crush कर देता है, and the weak become, sorry, the strong become more strong।
He won't do what you tell him. भाई विंड वो नहीं करेगा जो तुम उसे बोलोगे. इसीलिए let us bring strong homes, let us join the doors firmly, practice to firm the body, make the head fast. तो हमें ही अपने घरों को, अपने दरवाजों को, अपनी बॉडी को, अपने दिल को स्ट्रॉन्ग करना है टू फेस दीज adversities of wind. Do this and the wind will be friends with us. विंड वो नहीं करेगा जो आप उसे कहोगे. आप स्ट्रांग बन जाओ और आपका जो विंड है वो आपका दोस्त बन जाएगा. द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स. मतलब इफ यू आर वीक, जहां पर भी वीकनेस होती है वहां पर व्हेन देयर इज वीक फायर, उस वक्त में द विंड विल उसको बुझा देता है. बट इफ देयर इज स्ट्रॉन्ग फायर, एज आई सेड, अगर आप माचिस की तिल्ली लेकर अगर अपने घर में डालोगे तो वो एकदम से बुझ जाता है. whereas the same fire in the forest spreads. He makes strong fires roar and flourish. His friendship is good. We praise him every day. और अगर आप चाहते हो तो adversities को अपना दोस्त बनाओ. That would make you strong and you will praise it every day. Now, as I said, this portion is about the destructive power of wind, and the down one is about the message that the poet has given. Now let us come to the poetic devices and the rhyme scheme. There is no rhyme scheme. The poem is written in free verse. The poem is written in free verse. मतलब इसमें आपका जो है कोई राइम स्कीम नहीं है. जब आपका कोई राइम स्कीम नहीं होता, ए बी बी ए बी ऐसा, तो देन वी कॉल इट एज फ्री वर्स, यानी कि कोई राइम स्कीम नहीं है. नाउ फर्स्ट इज don't break the shutters, don't scatter the papers, don't throw down. यहां पर अगर आप देखो तो the word don't जो है it is repeated in the first line, हर first word of the line. अगले अगले लाइन में हर पहली बार में लिखा हुआ don't do this, don't do that, don't do that. Similarly, यहाँ पर you tore the pages, you brought the rain, you are very clever. The word you is repeated in the beginning of the sentence. तो जब ऐसा होता है तो हम इसको बोलते हैं anaphora. We call it as anaphora. When a word is repeated in the next lines in the very first, जैसे I went to market, I bought a pen, I went to the restaurant, तो जो I word है वो बार बार repeat हो रहा है. That is anaphora. Then crumbling houses, crumbling doors, crumbling rafters, crumbling wood, crumbling bodies, crumbling lives. ये जो word है crumbling, it is repeated. It is repetition. It is repetition. Wind god Vinos won't do what you tell him. W is repeated. The letter W is repeated. It is called as alliteration. He, his, him. It is personification. The wind has been personified like a human. अब विंड कोई इंसान थोड़ी है, लेकिन हम बोल रहे हैं विंड जल्दी आओ, विंड तुमने ये कर दिया,
विंड तुमने वो कर दिया. ही इज वेरी स्ट्रांग, हम विंड के लिए वी आर यूजिंग द वर्ड ही, यू, और उसको हम बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन. The wind will be friends with us. The wind will be friends with us. Assonance. जो आई वॉवल है वो रिपीट हुआ है. विंड में डब्ल्यू आई, विल आई, फ्रेंड्स में आई, देन विद में आई. इसमें यू हैव असोनेंस एंड एलिट्रेशन दोनों है. यू हैव बोथ एलिट्रेशन एंड असोनेंस. यहाँ पे डब्ल्यू 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 रिपीट हो रहा है एंड आई रिपीट हो रहा है. तो जब आई वॉवल रिपीट होगा तो असोनेंस है, एंड जब आपके लेटर स्टार्टिंग में रिपीट हो रहे हैं तो वो आपका एलिट्रेशन है. On the whole, the wind is a symbolism. It does not have any rhyme scheme. अगर आप देखो तो इसमें A, B, the wind comes softly, फिर shutters of the windows, papers, shelf, down, यानी कि कोई rhyme scheme नहीं है. And when there is no rhyme scheme, then we call it as free verse. अगर आपसे पूछा जाए what is the poetic device, sorry, what is the rhyming scheme of this poem, तो it is free verse. Then wind comes softly. This is personification because the poet is talking. You did. Look what you did. He is using the word you. He makes strong fire. He won't do what you tell him. अब विंड कोई इंसान थोड़ी है जिसके लिए हम ही यूज कर रहे हैं. वी आर यूजिंग ही फॉर द विंड, तो वो कोई इंसान थोड़ी है, तो इसीलिए पर्सोनिफिकेशन. Don't break the shutters, don't scatter the papers, don't. The word don't is repeated in the next lines. You tore the pages, you brought rain, you are very clever. Again, you is repeated. So it is anaphora. Crumbling houses, crumbling doors, crumbling rafters, crumbling wood. Crumbling word is repeated. So it is repetition. The wind god winnows. जो W है यहाँ पे won't do what. They are closely placed. W. It is alliteration. Let us join the doors firmly. इसमें नहीं है. Then do this and the wind will be friend with us. Wind will be friend में wind का W, will का W, with का W is repeated, so it is alliteration. And the wind, sorry, I, wind में, will में I, friends में I, with में I जो है, that is आपका assonance. As a letter, as a vowel, I is repeated. This is the entire poem and its poetic device. So in a nutshell, I can say that the poem is written by Subramanya Bharati and it is translated by A.K. Ramanujam. ये दोनों पेपर में आया हुआ है. Who is the
writer भी and who has translated भी. Translation इसको किया है A.K. Ramanujan ने, and it is written by a versatile, one of the most versatile writers, poet of Tamil literature, Subramanya Bharati. Or what the poem, the theme is, that the theme is difference between the person who are weak. It's a message that wind, yani ki adversities are destructive. The wind is the symbolism or symbol of the problems. You cannot ask the problems not to come. It will always come in any form. It will destroy us mentally. It will destroy us physically. But those people who are able to face these problems, these adversities, these obstacles, जो लोग इन परेशानियों को, इन दिक्कतों को सामना करते हैं, they would always succeed. उनके लिए ये these obstacles will become a milestone. What are milestones? मील का पत्थर. मान लो आप कहीं पर जा रहे हो, पानी है बीच में, तो हम क्या करते हैं, पानी होता है तो बीच में हम पत्थर रखा होता है, उसके ऊपर चल 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 के चले जाते हैं. Milestones. These are the milestones and they would become your friends. बाद में आप इन्हीं के बारे में बोलोगे कि मैं इन परेशानियों को मैंने जो है सामना किया था. वो परेशानियां आपके लिए एक फ्रेंड बन जाएंगी. When the people are weak, they are destroyed. When the people are strong, they face the adversities of life. So, as a message the poet conveys, we must be strong to face all the adversities of our life. We should always be physically and mentally strong. That is the poem Wind.